of an economy, how to sustain the growth of an economy for a long term. You understand the concept that saving, number one, and its mobilization, number two, and proper efficient use of that saving, three. There are three steps in the a process which is called capital formation. What we are studying since the last two lectures is called capital formation. And in India's perspective, we often use, the economists often call it as the problem of capital formation in India. Why is it called so? Why at all we call it a problem of capital formation? Because of the precise reason that we have not performed in this particular domain to the best of our potential. This is what economists believe, that several countries which were either at par with us earlier in the growth story, or they were even below. There are certain countries which are even below us in certain aspects. Even they could channelize their savings and use them efficiently, while we have not done that well. We have now started doing well, but when the period of accelerated growth was going on, at that point of time, economists do believe that there has been some suboptimal performance. If it is so, just a minute. Somebody had raised a hand, Anamika or someone. Okay, hold on. I think that was a mistake. But if it is not, then you write in the chat box. I'll give you an opportunity to speak. So we were saying that savings are important growth, especially emerging economies, because they do not want to depend on foreign capital. That is why, as much as possible, the proper utilization of domestic capital is necessary. Okay. And in that context, we studied that savings, domestic savings can be of two kinds, private savings and government savings. Private savings in turn can be divided into two parts. One is household sector saving, and the second is private corporate sector saving. We understood that the term aggregate saving, as we call it, includes all the four components. Okay, three are domestic, and the fourth one is foreign. So aggregate saving, the term aggregate saving will have household sector savings, number one, corporate savings, number two, government savings, number three, and foreign savings, number four. So that is the term. Okay, you should know aggregate saving. कहीं ऐसा आ जाए, अगर मान लीजिए प्रश्न बनाने पे कोई आ जाए कि किसी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में एग्रीगेट सेविंग जो यूज किया जाता है टर्म, एग्रीगेट सेविंग इंक्लूड्स ए बी 1 2 3 करके दे दिया, प्राइवेट सेविंग, गवर्नमेंट सेविंग, फॉरेन सेविंग, उसके बाद ए बी सी डी में शुरू हो गया, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1 2 and 3, इस तरह से वो कर सकता है. बेसिक टर्म है, इसलिए इसको अफोर्ड नहीं कर सकते इग्नोर करना. अच्छा, फिर हमने क्या जाना था कि कुल मिलाकर what will happen, what are the things, what are the items which actually flow across the borders. किसी एक इकोनॉमी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में कौन सी चीजों का आदान प्रदान होता है भाई, कौन से अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी वस्तुएं हैं या उत्पाद हैं या कौन सी सेवाएं हैं जिनका आदान प्रदान होता है. तो वह दो तरह का उसको बांट सकते हैं. सिंपल सी बात है, एक तो जो जिनके कंज्यूम हो जाने से इनकम जनरेट होती है, कंज्यूम हो जाने से, है ना, हमने सर्विस दिया, कंज्यूम हो गए, इनकम आ गई, हमने कोई चीज बेची, वो कंज्यूम कर लिया, इनकम आ गई. एक उस तरह की चीजें हो गई. और एक दूसरी चीजें होती हैं जो इनकम जनरेट करने की प्रोसेस में खुद कंज्यूम नहीं होती, वो जो है डेप्रिशिएट हो सकते हैं ओवर द इयर्स, लेकिन वो किसको बोल रहा है रे शुभम, नहीं समझ में आ रहा. हमको बोल रहा है, अच्छा किसी और को बोला शायद, वॉइस कर रहे. ऑल राइट, नेहा को बोला. ठीक है, अंडरस्टूड, नो नीड टू टाइप. ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज वेयर वर वी, just not defined. We were talking about the two kinds of transactions that take place. One is a thing which gets consumed in the process of income generation. The other kind of thing is an asset which does not get consumed in the process of income generating, but lasts long enough to have the potential of generating income for more than 1 year. तो जो पहला वाला टाइप का है दोस्तों, ठीक है, जो पहला वाला टाइप का चीज है,
वो सब जो है वो करेंट अकाउंट में आता है, आप जानते हैं। और जो दूसरे तरह की चीजें हैं वो कैपिटल अकाउंट में आती है, isn't it? ये हमने आज एक छोटा सा डिस्टिंक्शन कर लिया था। कुल मिलाकर अगर कोई कहे कि किसी भी इकोनॉमी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है उसके आपस में, बैलेंस मतलब तराजू, बैलेंस का मतलब तराजू होता है ना, संतुलन भी होता है, अगर तराजू ही का संतुलन की बात हो रही है ना, तराजू। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मतलब हमको कितना देना, हमको कितना लेना बाकी है, इस तरह की चीजें। तो किसी कंट्री के डोमेस्टिक और जो आउटसाइड इकोनॉमिक एनवायरमेंट है उसके बीच के जितने भी फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स हैं उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम के अकाउंट के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके तहत डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, नंबर एक ये समझ गया। नंबर दो क्या समझते हैं हम कि भाई एक और टर्म है ओवरऑल बैलेंस। ओवरऑल बैलेंस भी कह लीजिए उसको, कि भाई किसी करंट अकाउंट में जितनी चीजें आदान प्रदान हुई हैं बॉर्डर के इधर उधर, और कैपिटल अकाउंट में जितना आदान प्रदान हुआ, उन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ओवरऑल बैलेंस कहते हैं। ठीक है, फिर हमने ये एग्जाम्पल भी लिए थे, और इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, ट्रांसफर्स है, रेमिटेंसेस है ना, इस तरह की चीजें हैं। एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरोइंग्स है, कमर्शियल बोरोइंग्स है, बैंकिंग कैपिटल है, नाराई डिपॉजिट्स है, एफडीआईज, एफआईआईज, इस तरह की जो है चीजें। हमने एक एक्सरसाइज छोटी सी की थी भाई, कि जो है आप समझ जाएं कि कौन सी चीजें करंट अकाउंट का हिस्सा है, कौन सी कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है। ठीक है, आगे आपको पता चलेगा कि ये डिस्टिंक्शन हम क्यों कर रहे हैं, बहुत जरूरी है, इकोनॉमिस्ट के लिए भी बहुत जरूरी है, अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत जरूरी है, और एक विद्यार्थी के तौर पर आपके लिए भी बहुत जरूरी है जानना। फिर हमने बात की थी कि भाई ओवरऑल बैलेंस में दो तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं, या तो डेफिसिट हो सकता है या सरप्लस हो सकता है, मोस्टली यही होगा दोनों, है ना, ना ना डेफिसिट ना सरप्लस। ये तो आइडियल सिचुएशन है, एक्चुअली तो होती नहीं है, हो सकता है। तो अब आप देखिए भाई कि एक एग्जांपल हमने लिया था कि एक आदमी है, देयर इज सम बिजनेसमैन, सपोज ही रिप्रेजेंट्स द एंटायर कंट्री, सपोज दिस पर्टिकुलर पर्सन रिप्रेजेंट्स द एंटायर कंट्री, this particular businessman places an order with say Australia. Australia supplies liquor or whatever goods have been ordered. Okay, एक मिनट रुक जाओ यार, ये मुझे ही बता रहा है कि इंटरनेट स्पीड हमारी ही खराब है, थोड़ा बहुत मेरे में भी दिक्कत है। खैर कोई बात नहीं, जब एकदम दिक्कत होने लगे तो बता देना। एक मिनट रुक जाओ, हाँ बोलो, आई हैव अनम्यूटेड यू। जी जी, अच्छा बालकृष्ण बोल रहा है कि सब ठीक है। अब बीच बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा, तुम तो जानते हो हम इतनी बार रिपीट करते हैं कॉन्सेप्ट को कि कहीं कुछ छूट छाट भी गया तो वापस तो आ ही जाए। सो नथिंग टू वरी। ओके, हाँ तो हम कह रहे थे कि मान लीजिए दिस पर्टिकुलर पर्सन रिप्रेजेंट्स द एंटायर इकोनॉमी, ही प्लेसेस एन ऑर्डर विद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया फुलफिल्स द ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑर्डर एंड सप्लाईज लिकर, लिकर सप्लाई हो गया। उसके बदले में जब पैसा देने की बात आई तो जो डॉलर जो इनके पास थे वो कम पड़ गए। तो अगर डॉलर कम पड़ गया और आपको पे करना है तो फिर आप अपने रुपए को जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में, करेंसी मार्केट में बोलना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है, करेंसी मार्केट में डॉलर में चेंज करवाएंगे, और फिर डॉलर जब हाथ में आएगा तब इन्हें पे करेंगे। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ भी है, इस चीज को भी यहाँ भी समझ लीजिए कि इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि मान लो, कल नहीं बताया था इसलिए आज बता दे रहे हैं, मान लो ऐसा हो जाए कि आज क्या तारीख है, आज 9 है कि 10 है, 9 है ना शायद, जो भी है 9 तारीख है मान लो, तो 9 दिसंबर है आज। 9 दिसंबर को मान लो इन्होंने ऑर्डर दिया, ठीक है, और जो है वो तय हो गया कि आज जो है एक बोतल जो है वो उन्होंने मंगाया, कोई चीज मेडिसिन कह लीजिए, बार बार लिकर बोल रहे हैं, चलो ठीक है मेडिसिन मान लीजिए मंगवाई इन्होंने। अब इन्होंने एक जब आज ऑर्डर प्लेस किया तब जो डॉलर और रुपए का आपस का संबंध था वो मान लो 60 रुपीज था, लेकिन और जो है ठीक है, और ये उधार पे लिए, समझो ध्यान से, उधार पे लिए कि मान लीजिए $1 का है, सुनना की बात नहीं आओगे। 9 दिसंबर को जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया कि हमको एक बोतल सप्लाई कर दीजिए, हम आपका पैसा 1 महीने में दे देंगे, अगर ऐसा है तो $1 पर उसका दाम तय हो गया। तो 9 दिसंबर को ऑर्डर हुआ था तब दाम था 60 रुपए, और मान लो 8 जनवरी 2022 को इंडिया ने कि भाई दीजिए ना, ठीक है प्लीज दीजिए पैसा, जो आप कहे थे 1 महीना में दे देंगे दीजिए, अब 8 तारीख तो आ ही गया। और तब जब देने की बारी आई
तब मान लीजिए दो सिचुएशन मैं आपके सामने रखता हूं। जब 8 जनवरी को पैसा देने की बारी आई तब डॉलर का रेट हो गया 65 या डॉलर का रेट हो गया 55। समझ रहे हो मेरी बात? 60 रुपीज था तब जब ऑर्डर प्लेस किया गया था, लेकिन तब तो पे किए नहीं आप उधारी के चक्कर में थे। आप दो सिचुएशंस का आप मुझे जवाब दीजिए कि अगर 8 जनवरी को जब $1 पे करने की बारी आई तब संजोग से 55 रुपया हो गया दाम, डॉलर 55 रुपए के बराबर हो गया, तो फिर इंडिया को फायदा हो गया कि नहीं हो गया? अब ये चीज समझ में आई कि नहीं, तो नहीं बताओ, तब आगे बढ़े। ये छोटी सी चीज समझ में आई कि अगर पेमेंट करते समय फॉरेन एक्सचेंज का जो आपस का रिलेशनशिप है वो ऐसे फ्लक्चुएट हो जाए कि गिर जाए, सामने वाला जो है चीज कम हो जाए, कम रुपया खर्च करके वो करेंसी मिल जाए, तो अपना फायदा हो गया कि नहीं हो गया? है कि नहीं है? और अगर वही चीज 65 हो जाए, संजोग से मान लो 55 हो जाए, 65 हो जाए, तो वही चीज महंगी हो जाएगी हमारे लिए। इसी को फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन बोलते हैं, फ्लक्चुएशन का गेन या लॉस। ठीक, बस समझ गए बात? इसको फ्लक्चुएशन का गेन और लॉस है ये, क्योंकि डेट ऑफ ऑर्डर और डेट ऑफ पेमेंट में अंतर है, इसलिए दोनों डेट पे अलग अलग रेट क्या होगा इस पर डिपेंड करता है, जान गए ना? तो खैर चलो, फिर हम आए थे एक्सचेंज रेट पे आए भाई, कि जितना रुपया देकर डॉलर खरीदा जाएगा इंपोर्ट का बिल आपको पे करने के लिए, वही आपस में जो बदलाव का जो एक्सचेंज होने का रेट है उसको एक्सचेंज रेट कहा जाता है। जब कहा जाए कि रुपया मजबूत हो गया तो समझो कि कम रुपया दे के काम हो जा रहा है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं सब लोग, नहीं हो ये। जब कहा जाए कि रुपया एप्रिशिएट कर गया मतलब रुपए की प्राइस बढ़ गई, यानी रुपया का रौब बढ़ गया, तो रुपया का रौब वैल्यू बढ़ गया तो कम रुपया देके भी डॉलर मिल जाएगा। समझ गए बात? तो रुपया जो है मजबूत हो जाएगा तो कम रुपया देके भी डॉलर जो है वो आ जाएगा। ठीक बात है। रुपया डिप्रिशिएट करेगा तो जो है उसका ठीक उलट प्रभाव हो जाएगा, ये भी हम लोग समझ गए थे। और इसका एक जो है थोड़ा सा और एक्सटेंशन करके भी हमने समझा था कि भाई इसको ऐसे समझिए ना कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। यहीं पर एग्जांपल देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए दोनों अलग अलग तारीख में क्या हुआ है। जो हम दो एग्जांपल लिए वो अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन का ही तो एग्जांपल है रुपए के, ठीक है ना? वैल्यू ऑफ मनी के, बिल्कुल नवनीत सही बात है। वैल्यू ऑफ मनी जो है क्या हो रहा है, मान लो 65 रुपया देना पड़ रहा है इस चीज को, तो जो इम्पोर्ट कर रहा है उसके लिए महंगा पड़ा ना मामला, और 55 रुपया हो जाए तो जो इंपोर्ट कर रहा है उसके लिए सस्ता पड़ा, कम रुपया देके डॉलर पे करके छुट्टी पा गए। कुल मिलाकर यही जो है एक्सचेंज रेट का ये डिफरेंस पड़ता है। तो एक्सचेंज रेट प्रभावित करता है किस चीज को? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को। इस एक लाइन को इस आत्मसात कर लिए हैं कि नहीं, कि किसी बिजनेसमैन के लिए चाहे वो इंपोर्टर हो चाहे एक्सपोर्टर हो, अपना बिजनेस देखने के अलावा एक और चीज पर उसको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो क्या है? एक्सचेंज रेट। क्योंकि एक्सचेंज रेट जो होता है, करेंसी का जो एक्सचेंज रेट होता है, वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। यह बात आप समझ गए? तो आगे बढ़ा जाए। ऑल राइट शुभम, I hold you as the representative of everyone. Okay दीपक, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि भाई इतना काहे परेशान हो रहे हैं फॉरेक्स के लिए। कल से इसको थोड़ा सा चेंज किया है, 4 पॉइंट अपने निकाले अपने बढ़िया। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है भाई फॉरेक्स स्पेशली इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज जब वो अपने ग्रोथ पीरियड में होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप सोच कर देखिए कि कोई इकोनॉमी इंडस्ट्रियली जब ग्रो कर रही होती है, इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्त, कि जब इंडिया अपने प्राइमोर्डियल फेज में था इंडिपेंडेंस के बाद, जब ग्रो कर रहा था तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करता है कंट्री। ग्रोथ का एक दूसरा पर्यायवाची जैसा हो गया है कि भाई ग्रो करोगे तो आप प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी की तरफ जाओगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। और क्योंकि आप पहले से जो है डेवलप्ड कंट्री नहीं रहे तभी तो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो कहाँ से आएगा? बाहर से ही तो आएगा। सोच के देखो जरा हमारी बात को, कॉमन सेंस है कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, जब वो ग्रो करना शुरू करेगी, इंडस्ट्रियलाइज करना शुरू करेगी, तो कैपिटल इंटेंसिव चीजें जरूरत पड़ेंगी कि नहीं उसको? बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाना, ये करना वो करना है, तो इंपोर्ट उसके ज्यादा होंगे ना। एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में तो 20 साल बाद आएगा ना वो। सोच कर देखिए जरा, मेरी बात सेंस कर रही हो तो बताइएगा। एक ग्रोइंग इकोनॉमी के प्राइमरी फेज में जरा सोच कर देखिए कि वो क्या एक्सपोर्ट करने की हालत में होगा। अरे एक्सपोर्ट करने की हालत में होता अगर अच्छे से, तो फिर क्या स्थिति होती।
तो वह हैवी इंपोर्टर होगा और उतना अच्छा एक्सपोर्टर नहीं होगा ना अपने इनिशियल टाइम में। तो क्योंकि वो हैवी इंपोर्टर है, तो आप खुद बता दीजिए आप कि अगर इंपोर्ट किसी का हैवी है और उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है अभी, तो उसको फॉरेक्स का जरूरत पड़ेगा कि नहीं बिल पे करने के लिए। फिर धीरे धीरे जब उसका भी अपना खुद का एक्सपोर्ट किक इन कर जाएगा, तो जो डॉलर इंपोर्ट के लिए चाहिए बिल भरने के लिए, वो एक्सपोर्ट से ही नहीं आ जाएगा। बताइए, एकदम सिंपल सा चीज आपके समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना? ऑल राइट मयंक, रुद्र, अंकित, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, मैं मानकर चलता हूँ कि छोटी सी बात समझ में आ गई। तो पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं खाली अभी कि फॉरेक्स इतना महत्वपूर्ण क्यों, हम लोग इतना बात क्यों कर रहे हैं, जल्दी से जान लीजिए। ये ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए फॉरेक्स फॉरेक्स सब लोग बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। नंबर एक, दो महत्वपूर्ण कारण है इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए, ठीक है। पहला यह है कि जो है वो ग्रोइंग फेज में होता है, इंडस्ट्रियलाइज कर रहा होता है, तो उसका इंपोर्ट हमेशा ज्यादा होगा एक्सपोर्ट से, नेचुरल सी बात है। दूसरा कारण यह है कि जो इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज होती हैं उनको दूसरी सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है, पहले ही पॉइंट का विस्तार है ये, कि ऑयल फ्यूल की जरूरत बहुत पड़ती है ना भाई। ग्रोइंग इकोनॉमी को ऑयल जो है इनपुट्स की जरूरत पड़ती है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना सब कुछ वेहिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को फाइनेंस को सपोर्ट करने के लिए, तो इसलिए फिर ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है बहुत हैवीली। तो जो ऑयल इंपोर्ट है उसके लिए फिर फॉरेक्स की जरूरत पड़ती है, ये भी आप जानते हैं। तीसरी चीज सोचकर देखें कि आदमी जब आपको पैसा दे रहा हूं, मान लीजिए मैं आपको पैसा देता हूं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में यह विचार आएगा कि नहीं होगा। देखिए कितना बड़ा डायलेमा है, डायकोटोमी को समझिए आप, कि जब अगर आप मुझसे पैसा मांगने के लिए आते हैं, तो मैं पैसा देते समय दो पारस्परिक रूप से विरोधी चीजों का मैं ध्यान करता हूं, तब आपको पैसा देता हूं, जो आपस में विरोधी है। देखो कैसे विरोधी है। आप मुझसे अगर पैसा मांगने के लिए उधार मांगने के लिए आएंगे, तो मैं मेरे मन में सबसे पहले ये क्या आएगा कि जो है ये मुझे वापस कर पाएगा कि नहीं। पहली चीज मैं सोचूंगा कि इसकी कैपेसिटी है वापस करने की नहीं। तो अरे भाई, जब कैपेसिटी फाइनेंशियली परेशान है तभी तो वो पर्सन जो है वो आ रहा है आपके पास। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि फाइनेंशियली ट्रबल में है तभी तो आपसे उधार मांग रहा है। लेकिन एट दैट टाइम ऑल्सो यू थिंक इसका फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा है कि नहीं। आप समझ गए बात मेरी को, एक छोटा सा विरोधाभास जैसा है, विरोधाभास नहीं है लेकिन विरोधाभास जैसा महसूस होगा। तो वही सिचुएशन यहाँ भी है। हम कंट्री के रूप में आप किसी से उधार मांगने जाएं, किसी इंस्टीट्यूशन से या देश में विदेश में किसी से, तो वो ये जरूर देखेगा कि जरूरत पड़ने पर ये मेरा पैसा वापस कर पाएगा कि नहीं। ओके, तो फॉरेक्स को अगर आप थोड़ा बहुत फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करके रखेंगे, तो वो आपके जो लेंडर्स हैं, जो आपको पैसा देने वाले हैं, उनका विश्वास आप में बना रहता है, तो आपको छोटे लोन वगैरह मिलने में परेशानी नहीं आती है। अनिल, ठीक है, कह सकते हो सिविल है, वो CIB है, बी फॉर बॉम्बे। हाँ ठीक, यस फाइन, सिविल स्कोर जैसा समझिए। तो हम वो देखते हैं ना, चेक बैंक भी सिविल स्कोर, बहुत बड़ा एग्जांपल दिया, एकदम सही बात। तो वो इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए इसलिए 2-3 पॉइंट हो गए कि इसलिए उनकी जरूरत। दूसरा पॉइंट क्या है कि फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करने की कैपेसिटी आपकी तभी होगी ना जब आपके पास फॉरेक्स हो, रिजर्व हो, आप एक्सचेंज कर सकें, आप माहौल को अपने फेवर में कर सकें, आप माहौल को डोमिनेट कर सकें, माहौल को जो है वो आप मैं अभी बताऊंगा आगे एग्जांपल में, चिंता मत करिए, यही मैं तो आगे बताता हूँ, रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है, मैं पहले आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। कई बार देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष ऐसी चुनौतियां आती हैं जिसमें जो देश का सेंट्रल बैंक है, देश का जो है वो केंद्रीय जो बैंक होता है, जैसे हमारे यहाँ RBI है, उसको यह मैंडेट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, इकोनॉमी की तरफ से मैंडेट मिलता है कि आप इस चीज को स्टेबलाइज कीजिए भाई, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है सब, तो स्टेबलाइज करिए। तो फिर सेंट्रल बैंक जो है वो उतरता है मैदान में, और अगर किसी मान लो फॉरेक्स की कमी है, तो जो है उस तरह से फॉरेक्स का आधिक्य हो गया है, तो फॉरेक्स वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। समझ रहे हैं? अभी आप आगे देखेंगे। तो आपके पास फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए, इस तरह के फॉरेक्स मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपके पास फॉरेक्स रिजर्व भी तो होना चाहिए। जिसे कहते हैं, जैसे जब आदमी जुआ खेलने जाता है या कोई भी पैसे वाला जो गेम खेलने जाता है, तो होना चाहिए ना, तब आप उसको लगा के ही उससे जीतेंगे ना भाई। उस तरह का चीज को थोड़ा बहुत समझ लीजिए। तीसरी चीज क्या है कि एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एक्सोजिनस शॉक। जो एक्सोजिनस शॉक्स हैं स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है वो ऐसे उनके लिए, मैं आपको बता दूं, जो मान लीजिए फिक्स्ड रेट रखा हुआ है, अभी आगे पढ़ेंगे हम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मान लो किसी का है,
तो जो है करेंसी आपस में अपने आप वो स्टेबलाइज नहीं होती है। उसके लिए आपको स्टेबलाइज करने के लिए उतरना पड़ेगा मैदान में, आपको मैनिपुलेशन और एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो उस सिचुएशन के लिए, और बहुत सारे जो है माइक्रो इकोनॉमिक शॉक्स लगते हैं जब इकोनॉमी को, क्राइसिस आती है, उस समय अगर फॉरेक्स रिजर्व आपके पास है तो आप मैनेज कर ले जाते हैं चीजों को। आप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैलेंस कर ले गए, अपना जो फॉरेन डेट था, डेट की सर्विसिंग कर ले गए। डेट सर्विसिंग का मतलब होता है जो भी जो आपने लोन लिया है उसका ब्याज वाज पे कर ले गए। इस तरह की सिचुएशन जब आती है, माइक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जब आती है कंट्री में, तब भी फॉरेक्स रिजर्व बहुत काम आते हैं। कहने का अर्थ है यानी संचित जो धन है, ऐसे समझ लीजिए संकट के समय जो संचित धन अगर आपके पास है तो आप उसको जो है वो सह ले जाएंगे, आप उसको जो है पार कर ले जाएंगे उस कठिन समय। और जैसा कि मैंने भी बताया कि जो लेंडर्स है, मार्केट है, उसको भी कॉन्फिडेंस रहता है। कई बार ऐसा देखिएगा आप इतिहास में, वैश्विक स्तर पर भी और भारत के स्तर पर भी, इतिहास में अतीत में इसकी जो है ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है, जब लोगों ने जो है वो डर के पैसा जो है वो खींच लिया आपने कि नहीं नहीं ठीक नहीं, दे नहीं पाएगा, और ओवरनाइट जो है वो कैपिटल की जो है फ्लाइट। आज भी मैं आपको बताऊं कि जहां एक तरफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और ट्रेड डेफिसिट और इस सब की बात होती है, 1991 वाली जो क्राइसिस हुई थी 85 से 91 के बीच में भारत में, जहां एक तरफ इनको डोमिनेंट माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि जो मूल कारण था वो कैपिटल का फ्लाइट ही था इनडायरेक्टली, कि जो है सरकार अपने पास जो है पैसा देने को कोई तैयार नहीं था। ठीक है, शॉर्ट टर्म डेट्स लेने पड़े थे, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देने को कोई रेडी नहीं है। और शॉर्ट टर्म्स का यही दिक्कत है, अभी आगे बताएंगे क्या दिक्कत है, या अभी बता देता हूँ शॉर्ट टर्म डेट्स का दिक्कत आपको बताता चलता हूँ। एक एग्जाम्पल लेकर देखिए जरा। मान लीजिए शॉर्ट टर्म डेट का मतलब क्या समझे, 4 साल 5 साल 6 साल टाइप का लोन, छोटे समय का लोन। लॉन्ग टर्म लोन हो गया अपना 20 साल 25 साल 30 साल का जो है लोन मिलता है, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, कोई दूसरी कंट्री दूसरे कंट्री को पैसा दे रही है। दो तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब ध्यान से सुनना हमारी बात को। माना कि कोई कंट्री है जो रोड बनाने के लिए बाहर से लोन ले रहा है, एग्जाम्पल लो और समझ जाओ, मजा आ जाएगा। जो है रोड बनाने के लिए जो है उसने लोन लिया बाहर से, और मान लो कहां से, कहा तुम लोग कहाँ हो, प्रयागराज में हो, अहमदाबाद से प्रयागराज 6 लेन हाईवे के लिए लोन लिया गया जापान से, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कह रहे हैं, जापान से लोन ले लिया। लेकिन अब अगर वो पहले एग्जाम्पल लीजिए शॉर्ट टर्म का, ठीक है, लॉन्ग टर्म का देना ही नहीं पड़ेगा एग्जाम में। मान लीजिए शॉर्ट टर्म लोन मिला 1000 करोड़ रुपए का, एग्जाम्पल, बस ऐसा एकदम एम्पेरिकली जो है एक्यूरेट नहीं है, एग्जाम्पल है। 1000 करोड़ रुपीज का शॉर्ट टर्म जो है वो लोन दिया गया 5 साल के लिए। अब तुम बताओ, समझदार हो, कि 5 साल में ये रोड चालू हो जाएगा, ये पूरा 6 लेन हाईवे पे टोल वोल सब लग के और सब तैयार होकर 5 साल में ये शुरू हो जाएगा। जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका इंक्यूबेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड हैवी होता है, लॉन्ग होता है, जिनमें इन्वेस्टमेंट हैवी होता है, वो बहुत मुश्किल है। पहले ही उनको निर्माण में ही समय लगता है, और वो छोड़ दीजिए, निर्माण तो छोड़ दीजिए, निर्माण करने की क्षमता हो भी अगर 5 साल में, तो कितने तरह के यहाँ ब्यूरोक्रेटिक और करप्शन और पॉलिटिकल इश्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो जाया करता है। पता चला जमीन ही नहीं एक्वायर कर पा रहे हैं ठीक से, रोड बनाने के लिए जमीनें नहीं एक्वायर कर पा रहे हैं, भूमि अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है। तो अब देखिए क्या होगा कि अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट इफिशिएंट नहीं है, तो 5 साल में तो आपका प्रोजेक्ट टेक ऑफ करेगा ही नहीं और डिले होता जाएगा, और 5 साल बाद पैसा वापस करने का की नौबत आ गई। आप समझे मेरी बात? यस, इस तरह के जितने भी बुलेट ट्रेन ले लीजिए, कोई भी प्रोजेक्ट है, अब उसमें 5 साल बाद आपको पैसा वापस कर देना है, लेकिन तब तक आप जिसमें पैसा लगाए थे उसका रिटर्न उससे शुरू ही नहीं। टोल कलेक्शन आएगा, टोल भले लगेंगे, टोल का कलेक्शन आएगा तब ना। तो इसीलिए जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर या हैवी प्रोजेक्ट्स जो भी हैं, उनमें यदि है स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई, कैसी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, कि अगर आपने उसे शॉर्ट टर्म फाइनेंस से, अगर डेट से फाइनेंस करने की कोशिश की, तो क्या समस्या आएगी कि इससे पहले कि वो आपको रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करे, आपको रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन आ जाएगा। समझ गए बात? इसी तरह के कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। तो आपके पास फॉरेक्स रिजर्व अगर बना हुआ है तो आप इस प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है ना, कि ठीक है आप ये ले लीजिए, जापान को पैसा वापस कर दिया, और कोई दूसरा कंट्री है तो उससे लोन ले लिया, फिर अगले 5 साल के लिए उसने दे दिया। अगर आपके पास फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है तो लेंडर्स का आप में कॉन्फिडेंस रहेगा। नहीं तो आप अगर इस तरह से आप लिंक करेंगे कि जब इसी में लगा रहे हैं पैसा तो इसी से पैसा आएगा तब देंगे, तो या तो आप उतने एफिशिएंट होइए,
या फिर सबसे अच्छी बात क्या है कि जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करिए, शॉर्ट टर्म उनको खर्चा ना करिए। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण माना गया था उस समय की हमारी जो हमारा संकट था, उसमें शॉर्ट टर्म जो डेट्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल माना गया था। जाने रहिए इस चीज को। मेरी बड़ी इच्छा थी कि आपको थोड़ा सा एक्सचेंज रेट के बारे में ठीक से मालूम होना चाहिए, और भारत में जो एक्सचेंज रेट है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो एक्सचेंज रेट इन जनरल जो है वो कितने रिजिम्स हम जानते हैं, 3 तरह के रिजिम्स आप जानते, 2 तरह के हैं बेसिकली, और उनके बीच में बहुत तरह के आते हैं कुछ, ठीक है। तो पहले दो को समझ लीजिए अच्छे से। एक होती है फिक्स्ड रेट और एक है फ्लोटिंग, ठीक है। ये आप जो बैंक लोन के संदर्भ में भी, हाउसिंग लोन और इन सब के संदर्भ में भी सुना होगा कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग 2 तरह के होते हैं। फिक्स्ड का अर्थ है हुआ कि जो रेट है वो फिक्स कर दी गई है। हमारी जो करेंसी है, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, इसका एग्जांपल दे दूंगा आपको। भारत के ही हाँ ये ले लीजिए, भूटान और नेपाल का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। छोटी इकोनॉमीज है, ग्रोइंग इकोनॉमीज है, एकदम से नहीं फेस कर सकती है पूरी इंटरनेशनल जो है करेंसी मार्केट को, वॉलेटिलिटी को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, उसको फिक्स्ड रखते हैं भाई कि हमारा करेंसी भाई फिक्स्ड है, हम उतना अप डाउन जो है वो झेल नहीं पाएंगे अभी, जब तक हम ग्रो कर रहे हैं तब तक हम इसको फिक्स्ड रखेंगे, ठीक है, फाइन फाइन, हाँ ठीक है ठीक है रमाकांत, उसको दूसरे तरीके से मैं बताऊंगा आपको, आप चिंता न करें, आप सुनते रहें बस तरीके, ठीक है। फिक्स्ड रेट जो है का अर्थ ये हुआ कि मेरी करेंसी किसी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के तुलना में फिक्स्ड है, आपस में वो एक दूसरे के लिए से मिलकर और जो है आपस में फ्रीली ट्रेडेबल होकर जो है उनका रेट आपस में मार्केट के हिसाब से एडजस्ट नहीं होता। जैसा हम सुनते आए हैं ना कि जो है मार्केट जो है वो प्राइस को डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस को ऐसे करता है कि नहीं करता है, यही तो हम सीखे। तो करेंसी भी को गुड समझ लीजिए, पर करेंसी को भी गुड समझ लीजिए। तो करेंसी का जो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से यदि प्राइस जो है वो ना होने दिया जाए अप डाउन, बल्कि सरकार फिक्स कर दे, गवर्नमेंट फिक्स कर दे, तो उसे फिक्स्ड करेंसी रिजीम कहा जाता है। बहुत सिंपल, आसान एकदम। उससे फायदा क्या होगा भाई कि भाई क्रेडिबिलिटी रहती है, आज हम कुछ खरीद रहे हैं तो हमें मालूम है, हम उसको प्लान कर सकते हैं। वही देख लो ना एग्जाम्पल जो हम अभी लिए थे कि 8 जनवरी को पैसा पे करना हो तो पता ही नहीं कि उस दिन क्या करेंसी का रेट होगा। तो कहने का मतलब क्रेडिबिलिटी रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है। ये बात सही है, ये बात ठीक है, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले समझिए कि फिक्स्ड रेट हुआ कि सरकार जो है वो तय करती है, देश की अर्थव्यवस्था की सरकार तय करती है कि हमारी करेंसी जो है वो फलाने करेंसी की तुलना में जो है वो इतना रहेगी। समझ गए बात? अब वो करेंसी की तुलना में भी किया जाता है। कभी कभी हिस्टोरिकली ऐसे भी एग्जांपल्स है कि गोल्ड के कंपैरिजन में भी फिक्स करते थे करेंसी को, किया हुआ है, इंडिया ने ही किया हुआ है, ठीक है। अभी देखेंगे आगे उसका एग्जांपल। तो नेपाल और भूटान की जो करेंसीज हैं उन्होंने भारत की करेंसी यानी भारत के रुपए, जो रुपया है ना, भारत के रुपए के हिसाब से अपनी करेंसी को फिक्स किया हुआ है। समझ गए बात? तो इसीलिए वो फिक्स्ड रेजिम का एग्जांपल हो गया, ठीक है। फ्लोटिंग का एग्जांपल क्या हो गया कि भाई जो है वो ओपन मार्केट के सहारे छोड़ दिया, पूरा का पूरा मार्केट के सहारे छोड़ दिया। इंडिया लगभग उसका एग्जांपल है। थोड़े से गुण फिक्स्ड वाले हैं, फिक्स्ड वाले नहीं कहेंगे, थोड़ा सा मैनेज करता है इंडिया, लेकिन डे टू डे जो मूवमेंट है करेंसी का उसमें इंडिया इंटरफेयर नहीं करता, सरकार इंटरफेयर नहीं करती डे टू डे मूवमेंट में। कभी आवश्यकता पड़ने पर मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ जाए, मैनिपुलेट करने की वो अलग बात है, लेकिन डे टू डे बेसिस पर इंडिया इंटरफेयर नहीं करता। तो कह सकते हैं आप इंडिया एक अच्छा एग्जाम्पल है फ्लोटिंग सिस्टम का, ठीक है। लेकिन टेक्निकली बहुत करेक्ट होना चाहिए, तो एक्चुअली इंडिया यहां कहीं है, ठीक है, इंटरमीडिएट कहीं, ये बीच की स्टेज में सबसे एडवांस्ड वाले की तरफ है, फ्लोटिंग की तरफ झुका हुआ है, लेकिन कभी कभी मैनेज करता है। समझ गए बात? तो उस तरह की चीज हो गई। तो जो आप देखेंगे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि बहुत सारी जो छोटी कंट्रीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, वो सब अक्सर अपनी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हिसाब से वो अपनी करेंसी को फिक्स्ड करेंसी रखती है, ठीक है। फ्लोटिंग का फायदा क्या? फिक्स्ड वाला इतना आसान नहीं है, मैं आपको बताऊं ना, इतना आसान नहीं है। फिक्स में बहुत बड़ा चैलेंज आता है। करेंसी को जो इतना दिख रहा है सरल आपको, उसको किसी दूसरी करेंसी की तुलना में फिक्स करने का मतलब बहुत मुश्किल है। उसमें जो है वो अलग अलग आइटम्स की प्राइसेस के हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ता है। बहुत थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ प्राइसेस को जो है वो फिर फिक्स करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। फ्लोटिंग का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमने मार्केट के हवाले छोड़ दिया, मार्केट उसे अप डाउन करता रहे, बात खत्म। हम हमको एक ही चीज बस, फ्लोटिंग का एडवांटेज है, एक ही चीज बस आपको करनी है कि मार्केट के हवाले छोड़ दिया, एंड दैट्स ऑल। करेंसी आपस में जो है वो अप डाउन
हो रही है। उसमें फिर आपको इंडिविजुअली जाके कमोडिटीज का और इनका सबका प्राइस को करेंसी के हिसाब से एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो इंटरमीडिएट सिस्टम्स हैं वो दोनों का फायदा लेने की कोशिश करते हैं। अलग अलग रेजिम्स, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग लेवल तक, ठीक है, वो फ्लोटिंग की तरफ जा रही है। बस इतना समझिए कि अलग अलग यहाँ पर बहुत सारे स्टेजेस हैं। जो बहुत ज्यादा फ्लोटिंग की तरफ है, कुछ कम है, हार्ड पेग बोलते हैं, सॉफ्ट पेग बोलते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें मत पड़िए। आप बस इतना जान लें कि एक तरफ फिक्स्ड है, एक तरफ प्योरली फ्लोटिंग है, और बीच में बहुत सारे इसमें जो है सीढ़ियां बन सकती है। उनमें इंडिया कहीं, भारत कहीं इस जगह पे है सीढ़ी पे, ठीक है, जिसे मैनेज्ड फ्लोट कहा जाता है। इसलिए भारत की जो सिस्टम है फॉर एक्सचेंज रेट, उसको मैनेज्ड फ्लोट कहा जाता है, क्योंकि 99% ऑफ द टाइम समझिए फ्री फ्लोटिंग है, मार्केट के हवाले है। कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर जो है उसे मैनेज किया जाता। ये देखिए आपके लिए एक एग्जांपल मिला, मैप मिला जो है वो ट्विटर पे। ये दिखाता है कि एक्सचेंज रेट जो है वो यूएस डॉलर, यूरो, फिक्स्ड वाले, देखिए ये फिक्स्ड वाले हैं। कौन कौन से, ये देखिए आपको दिख जाएगा यहाँ पर। ये बहुत बड़ी एक समस्या है, लेकिन अब इसका करें तो क्या करें। मैं इसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन अब उपाय ही नहीं लगता है कुछ। देखिए भारत का देखिए मैप किस तरह से दिया हुआ इन्होंने, लेकिन विदेशों में यही तो नाटक चलता है। तो इसकी मैं भर्त्सना करता हूं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। इस चीज का मैप है, जैसा मिलता है वैसा इस्तेमाल करना पड़ जाता है। कोई बात नहीं, जहां तक हो सकता है मैं यूज नहीं करता हूँ, तो खैर छोड़ दीजिए उस चीज को। यहाँ पर आइए, नेपाल और भूटान देख ही रहे हैं आप, तो नेपाल और भूटान जो देख लीजिए वही कलर है। कलर कोड देख लीजिए आप, अपने आप खुद ही देख लेंगे, कलर कोड आपको पता चल जाएगा। इंडियन रुपी के हिसाब से इन्होंने अपनी करेंसी को फिक्स किया हुआ। ये सारी कंट्रीज जो आपको इसमें कलर में दिख रही है इस समय आपके मैप पर, ये सब फिक्स्ड वाले हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि किसने किस करेंसी के कंपैरिजन में अपने आप को रिलेशनशिप में फिक्स किया हुआ। जैसे नेपाल और भूटान, भारत का रुपया हो गया। फिर देखिए ये डॉलर वाले आपको दिख रहे हैं, ठीक है, एक मिनट छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। जितना ये जिसे कहते हैं, ये वाला जो कलर है बैगनी टाइप का, थोड़ा सा, हाँ, ये कंट्री छोटी वाली देखिए, ये सारी छोटी छोटी कंट्रीज है, इन्होंने यूएस डॉलर के हिसाब से किया हुआ है। यहाँ भी देखिए यूएस डॉलर से, ये यूएस डॉलर के हिसाब से किया है, यूएस डॉलर के हिसाब से किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे होंगे जो यूरो के हिसाब से, देखिए ये यूरोपियन वाला है, तो यूरो के हिसाब से यूरो 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 यूरो। ये तो आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी कॉलोनीज रही है ना, ब्रिटेन की कॉलोनीज बहुत सारी रही है इस अफ्रीकन एरिया में भी, ठीक है। तो आप इस मैप को दिखाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप ये जान लें कि अभी भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फॉलो करती हैं, जो लेटेस्ट मैंने पढ़ा उसके हिसाब से। और अंतर यह है कि किसने किस करेंसी के रिलेशनशिप में अपने करेंसी को फिक्स किया हुआ है। हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने रुपए के हिसाब से किया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से जो है फिक्स्ड सिस्टम ऐसे काम करता है। उसके अलावा ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो सब फ्लोट वाली है, इस बात जाने रहिएगा, ठीक है। ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो फ्लोट वाली, या तो फ्लोट वाले हैं या फिर उन्हें बीच बीच वाले किसी सीढ़ी पर वो बैठे हुए हैं, ऐसा समझ लीजिए। अब इतना ही अच्छा है तो सब लोग वही अडॉप्ट कर लेते। कहने का अर्थ यही कि अगर फिक्स इतना अच्छा है तो फिक्स अडॉप्ट कर लेते, फ्लोट इतना अच्छा है तो फ्लोट। क्या कुछ कमियां हैं, क्या दिक्कत क्या है? तो दिक्कत को बहुत ध्यान से समझिए। दोनों ही जो सिस्टम्स हैं, दोनों ही जो एक्सचेंज रेट सिस्टम्स, उनके अपने फायदे और अपने नुकसान है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, फिक्स्ड अगर रहेगा तो स्टेबिलिटी रहेगी, सिंपल सी बात है। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन सब के लिए स्टेबिलिटी रहेगी। आदमी प्लान कर सकता है कि मुझे इसमें इतना पैसा लगाने पे, इतना एक्सपोर्ट करने में इतना प्रॉफिट होगा, इतना नुकसान हो सकता है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर एक्सचेंज रेट का आपको मालूम है पहले से, है कि नहीं है। जबकि अगर फ्लोटिंग होगा तो वोलाटाइल रहेगा वो, और प्राइसेस जो है वो एक तरह से आप उनका अंदाजा नहीं लगा सकते, प्राइसेस जो है वो अनसर्टेन रहेंगी, ये दिक्कत रहेगी, है कि नहीं। दूसरा, फिस्कल पॉलिसी जो होगी वो इफेक्टिव रहेगी। अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का सिस्टम है, यानी आपको सारा काम जो है वो एक्सपेंडिचर्स मैनेज करना है, करेंसी फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, उसका इफेक्ट आपको नहीं पड़ता। यानी मॉनिटरी, आप समझ रहे हैं मेरी बात, मनी की जो वैल्यू है अगर वो चेंज नहीं हो रही है, आप बहुत सामान्य शब्दों में समझिए कि मनी की जो वैल्यू है अगर वो चेंज फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, तो सीधे सीधे फिस्कल पॉलिसी पर भरोसा किया जा सकता है, मॉनिटरी पॉलिसी काम नहीं आएगी। ये बात सही है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, पहले ये बताओ। मॉनिटरी पॉलिसी जो काम करती है वो किस बेसिस पे करती है भाई? मनी के डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट करती है। लेकिन यहाँ तो मनी का जो डिमांड, जो वैल्यू है, मनी का डिमांड और सप्लाई की जो बात है,
वो तो कहीं पिक्चर में ही नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है। ठीक, तो आप समझ गए मेरी बात। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूं वो ये बात है कि अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हुआ तो फिर उसमें एक जो समझने वाली बात यह है कि उसमें फिजिकल पॉलिसी काम आएगी, मॉनेटरी पॉलिसी काम उतना नहीं आएगी, वो इनफेक्टिव रह जाएगी। जबकि उसका ठीक उलट होगा वोलेटाइल में। ठीक है, ऑलराइट। फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट की जो है इन्फ्लेशन। हाँ, सोचिए ना, आप खुद सोचिए कि इन्फ्लेशन को जो है वो कंट्रोल करना, जब वैल्यू आपके हाथ में, मनी का वैल्यू जब आपके हाथ में है, तो इन्फ्लेशन आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज नॉट एज डिफिकल्ट। जबकि फ्री जो अगर फ्री एक्सचेंज रेट है, अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, तो उसमें जो है वही दिक्कत आएगी कि आप इन्फ्लेशन को जो है वो कंट्रोल इतनी इजीली नहीं कर सकते। बहुत सारे अलग अलग मेजर से आपको हमला करना पड़ेगा, तब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। ठीक है, फिर इम्बैलेंसेस को एडजस्ट करना लेकिन मुश्किल होता है। इतना इतना अच्छा होता तो सब फिक्स्ड ही नहीं ले लेते। कि अगर इम्बैलेंसेस होते हैं तो आपका एक्सचेंज रेट तो फिक्स्ड है, तो एब्जॉर्ब शॉक एब्जॉर्बर आपका जो है नहीं, कमानी लगाए हुए हो। समझ रहे हो ना, ट्रक में जो पहले कमानी, पीछे कमानी, अभी भी आती कमानी आती है, और शॉकर एक दूसरा चीज हो गया। तो आपके पास कमानी है बहुत कम, आप में जो मान लीजिए जो कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द शॉक्स है वो कम रहेगी अगर आप रिजिड रहेंगे तो। रिजिडिटी का ही तो प्रॉब्लम है। ठीक है, और स्पेकुलेटिव अटैक्स। स्पेकुलेशन समझते हैं आप, करेंसी में स्पेकुलेशन होता है कि सट्टेबाजी। तो आपका जो है प्रिडिक्टेबल है ना, प्रिडिक्टेबल है, तो प्रिडिक्टेबल है तो उसमें जो है वो सट्टेबाजी हो रही है। और दूसरी बात जो है कि वो मार्केट की जब चीजें हवाले होती हैं तो वो मार्केट फोर्सेस उनको गाइड करते हैं। उनका प्राइस जो है मार्केट डिटरमिन करता है सबसे रेशनल तरीके से, सबसे रेशनल तरीके से डिटरमिन करता है। लेकिन और उसमें जो है वो फिर मार्केट अपने हिसाब से, इतना ह्यूज मार्केट है, मार्केट इतना बड़ा है कि जो है स्पेकुलेशन उसे जो है मैनिपुलेट नहीं कर सकता, जबकि फिक्स्ड में ये दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट टू डिफेंड द एक्सचेंज रेट। अब वैल्यू तो चेंज हो नहीं सकती है, समझिए बात को। मान लीजिए नेपाल और इंडिया का एग्जांपल लीजिए। नेपाल का जो रुपया है इंडिया के रुपए के मुकाबले में फिक्स्ड है, उसका वैल्यू तो फिक्स्ड है। तो अगर इस करेंसी के लिए उसको एडजस्ट करना हो तो यानी मनी की सप्लाई, मनी की डिमांड और सप्लाई, मनी के उसको अफेक्ट करना हो तो वैल्यू से तो इफेक्ट कर नहीं सकते। तब कैसे करोगे, कैसे एक्सचेंज रेट को संभालने के लिए क्या करोगे, क्योंकि वो तो फिक्स किया हुआ है आपने। तब इंटरेस्ट रेट से खेलना पड़ेगा आपको। ठीक है, मनी सप्लाई को गवर्न करने के लिए इंटरेस्ट रेट से खेलना पड़ेगा आपको। वो एक ही चारा बचता है फिर, इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि जो फ्री जो करेंसी होती है उसमें जो है इंटरेस्ट रेट को मैनिपुलेट करने या टेम्पर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक बात है, ऑलराइट। तो ये कुछ जो है फायदे और नुकसान होते हैं। ठीक है, अब एक और मैप देखिए। हाँ, एक और ये मैप देख लीजिए एक बार। ये बताता है कि किस किस एरिया के लोग, किस किस एरिया की जो कंट्रीज है वो किस किस करेंसी से अपने आप को जोड़े हुए हैं, है ना, वो ये बता रहा है। देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऊपर जो लीजेंड्स दिए हुए हैं इसमें बहुत ज्यादा समय आपका मैं नहीं लेना चाहता, सिर्फ और सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है कि आप देख लें। नेपाल भूटान आप जान ही गए हैं, भारत के लिए है। डॉलर का जो है एरिया दिख रहा है, यूरो का दिख रहा है। ठीक है, फाइन, ठीक है, आगे बढ़िए। अब भारत की स्थिति देखिए। भारत में करेंसी का जो एक्सचेंज सिस्टम रहा है वो कैसा रहा है, अब देखिए आप, और आपको जो है समझ में आएगा। और ये थोड़ा ध्यान से, हाँ, खूब अच्छे ध्यान से इसको समझिएगा। ये मैंने एक रोड मैप समझिए बनाया हुआ है, एक रोड मैप बन गया। अब आइए समझते हैं कि भारत में कब क्या हुआ है। आपको बता दें कि इंडिपेंडेंस, जब भारत स्वतंत्र हुआ, इंडिपेंडेंस के ठीक बाद यानी 1947 से लेकर आज की तारीख तक, अगर आप करेंसी का जो रेजिम है, करेंसी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको बांटने का प्रयास करें, उसको जो है वो फेजेस में अगर आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें, तो मेरी समझ में जो आया उसके हिसाब से मैंने इसे 4 फेजेस में बांटा है। ठीक है, और आप हमेशा जो है हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। पहला फेज जो है वो 1947 से लेकर 1971 के बीच का फेज है। उस दौरान क्या हुआ बताइए, क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई। आप ऐसे ही कोई 2-4 घटनाएं बता दीजिए। स्वतंत्रता मिली हमको, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, ये सब चीजें चलने शुरू हुई, फिर क्या हो गया भाई,
भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, ठीक है, बहुत बहुत सारी घटनाएं हुई, ड्रॉट आया, एक बहुत भयानक ड्रॉट आया, हम लोग नए नए फेज में थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कर रहे थे, ये सब तरह की परिस्थितियां थी हमारे सामने, ठीक है। तो जो है उस समय जो सिस्टम लिया गया करेंसी के लिए, इसको अब मैं बड़ा कर रहा हूं। अब आप जो बर्ड्स आई व्यू देख चुके हैं, तो अब मैं इसे बड़ा करके समझाने का प्रयास करता हूं। इसे पार वैल्यू सिस्टम कहते हैं कि किसी एक चीज के, ये फिक्स्ड टाइप का ही है, ओके, ध्यान रखना, ये फिक्स्ड टाइप का है कि किसी एक चीज को ले लीजिए अपनी नजर में और उसकी तुलना में अपनी करेंसी को फिक्स कर दीजिए। इसे पार वैल्यू कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर एसेट या किसी पर्टिकुलर जो है वो व्हाट शुड आई से, किसी टेंजिबल के अगेंस्ट जो है आप अपनी करेंसी को का मूल्य निर्धारित कर दीजिए। तो जैसे देखिए कैसे गोल्ड के अगेंस्ट किया, गोल्ड के अगेंस्ट उस समय पार वैल्यू सिस्टम जो किया गया इंडिया में, उसमें क्या होता था, देख लीजिए, आप अपने सामने देख लीजिए स्क्रीन पर, 1 रुपए को 4.15 ग्रेन्स ऑफ फाइन गोल्ड, तो ये सोने के अगेंस्ट, गोल्ड के अगेंस्ट करेंसी को फिक्स किया हुआ था। इसे पार वैल्यू सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। रुपए का तो आप लोग रुपया तो जानते ही होंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग चीज याद आ गई कि वो कहते थे ना कि आज भी यहाँ तक कि देखिए संस्कृति कितनी गजब चीज होती है, जो है वो आज भी कहीं ना कहीं कहावत में या मुहावरों में निकल जाती है कि अरे यार ये हो जाएगा, हमारी कहीं लगवा दोगे, 4 पैसा कमा लेंगे। होता है कि नहीं होता है, सुना होगा आपने कि 4 पैसा कमा लेंगे। तो 4 ही पैसा क्यों बोलता है भाई, ऐसा क्या है 4 पैसे में, कोई बताओ जरा चैट बॉक्स में, ये क्या बोलता है 4 पैसा कमा लेंगे। रुपए का भी इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ना चाहिए आपको। पहले क्या होता था कि 4 पैसे का एक आना होता था, है ना, 4 पैसे का एक आना। पहले 100 का नहीं होता था ना, 100 पैसे का 1 रुपया नहीं होता था, बहुत लेट में हुआ है 100 पैसे का, जाने रहो। 16 चौके 64, इस तरह से होता था, ठीक है। 16 आना सुने होंगे ना भाई, तो 4 आना 16 आना ऐसे करके, तो इस प्रकार से होता क्या था कि 1 रुपये में जो है 64 पैसा जैसा होता था, आप लोग जाने रहिए इस चीज को, 64 पैसा होता था, ओके। 4 आना बोलो, 16 चौको 64 ऐसा होता था ना। तो 1 रुपया वो हुआ करता था, चवन्नी और ये सब टाइप। फिर धीरे धीरे जो है नया पैसा आया ना, फिर उसको टर्म कर दिया गया नया पैसा, और फिर नया हटा दिया गया, पैसा ही रह गया। तो अब आज की तारीख में जो 1 रुपए में 100 पैसे की जो बात होती है वो अब है, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। पहले 64 पैसा जैसा था। खैर उससे वापस आ जाते हैं। तो अच्छा ये रुपया, ये कभी सोचा है तुमने कि नेपाल में क्या बोलते हैं उसको, नेपाल की करेंसी का भी क्या नाम है? 16 आने का 1 रुपया हमको, बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, एकदम सही बात, नेपाली रुपया ही बोलते हैं। तो ये क्या हमने क्या उन पे कब्जा किया हुआ था जो वो भी रुपया बोलते हैं? नेपाल हमारे अधीन था क्या? वो कहीं रुपया बोल रहा है? और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कहीं और भी है रुपया? थोड़ा टाइम लूंगा मैं इस पे, आपको झकझोरना चाहता हूँ, या आपको जो है थोड़ा 360 डिग्री पढ़ाई करनी पड़ेगी आप। और भी कहीं रुपया है क्या? रुपया शब्द जो है वो कहीं और की भी करेंसी है, जरा बताइए। 1-2 देश, पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान तो ठीक है, वो तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा रहा है हमेशा से। और श्रीलंका, और इंडोनेशिया, बिल्कुल ठीक, और इंडोनेशिया में भी रुपया ही बोलते हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में देखिएगा एग्जाम्पल मिल जाएगा। कुल मिलाकर आपको बताना ये चाहते थे कि रुपया जो शब्द है, रुपया शब्द की जब आप देखेंगे, अरे ऑक्यूपाइड वाइट छोड़ो, रुपया जो शब्द है ना वो संस्कृत का है। आप अब ये आपका होमवर्क है, आप बताइएगा कि रुपया का जो संस्कृत में जो यह तद्भव है, जो संस्कृत में उसका तत्सम है और उसका क्या अर्थ है। जो संस्कृत भाषा है, इसी से पता चलता है कि कैसे कल्चर्स कैसे आपस में जुड़े रहे हैं सभी सभी जगह के, ठीक है। ये अविनाश भाई बोला फलाना वचन बोल दिस नपुंसकलिंग का, ठीक बात। चलो तो वापस आते हैं। मैं कह रहा था ये कि रुपया जो है वो गोल्ड के अगेंस्ट देखिए इस तरह से फिक्स किया हुआ था, और रुपया पाउंड स्टर्लिंग के अगेंस्ट फिक्स था, और रुपया डॉलर के, अगर रुपए का पाउंड स्टर्लिंग और डॉलर के हिसाब से अगर आप अनुमान करना चाहिए तो देखिए क्या लिखा हुआ,
13.33 रुपए का, 13.33 रुपए का जो है वो 1 पाउंड स्टर्लिंग, और 4.76 रुपए का 1 डॉलर उस समय हुआ करता था। ठीक है, यहां तक समझ गए? 1 डॉलर। फिर अभी आपको पता चलेगा कि, या अभी बता देता हूं, चलो अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि 1966 में, ये इसी पीरियड की बात हो रही है, 47 से 71 के बीच में, उसके बीच में यह स्थिति थी पहले। बाद में फिर 1966 में रुपए को डी वैल्यू, उसका अवमूल्यन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, इस पर अभी विस्तार से आएंगे। उसका अवमूल्यन करना पड़ा, और जब अवमूल्यन हो गया तो अगर मुझे ठीक से याद आता है तो ये बढ़ के 13 जो रुपए था वो 21 के आसपास कहीं हो गया था, और ये 7.5 रुपए के जैसा हो गया था डॉलर। ठीक है, यानी 50 कितना हो गया, 50% के करीब मामला हुआ जा रहा है। देखिए ना, 40-50% जैसा जो है वो अवमूल्यन, जो कितना कायदे से, उससे भी ज्यादा हुआ जा रहा है। तो ये स्थिति थी, तो अवमूल्यन करना पड़ा 1966 में। ठीक, ये मुख्य। तो क्या समझे हम कि 1947 से लेकर 1971 के बीच का जो दौर है वो पहला फेज कहला सकता है। उसमें पार वैल्यू सिस्टम जो है वो हम लोग अपनाए हुए थे। उसमें रुपए को गोल्ड के अगेंस्ट और रुपए को डॉलर और पाउंड स्टर्लिंग के अगेंस्ट जो है वो कैलिब्रेट किया हुआ था। 1966 में बहुत सारी परिस्थितियों के फलस्वरूप हमने रुपए का अवमूल्यन किया, और जो है वो रुपया, जिसे कहते हैं, रुपए को कमजोर किया। अभी देखेंगे क्यों किया। और पाउंड स्टर्लिंग जो है वो 13 से बढ़ के 21 या कुछ हो गया था, और ये जो है 7.5 रुपए जैसा हो गया था 1 डॉलर की कीमत। 1971 के बाद का जो पीरियड है, उसमें फिर पेग्ड, उसको पेग्ड रिजीम कहते हैं। पेग्ड मतलब खूंटी, खूंटी से बांध देना जिसे कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या हुआ था वो आपको बता दूं मैं, आपको जानना चाहिए कि जो ब्रेटन वुड्स है ना, ब्रेटन वुड्स पढ़े हो? ब्रेटन वुड्स नेगोशिएशन, ब्रेटन वुड्स जो होता रहा है हमेशा से, उसकी बदकही आती रही है। तो वो क्या है कि उस समय तक आते आते ना वो ब्रेक डाउन हो चुका था। 1971 तक आते आते वो फेल हो चुका था पूरी तरह से। तो उसमें क्या हुआ कि जब ये ऐसा हो गया, फेल्योर का, ब्रेटन वुड्स सिस्टम जब फेल होने के नौबत पे आ गया भाई, यस यस बिल्कुल सही है, आप लोग चैट बॉक्स में सही बोल रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, दिक्कत क्या आई, मैं बताता हूँ आपको। कि जो पाउंड स्टर्लिंग है ना, पाउंड स्टर्लिंग जो उनका है ब्रिटेन का, उनके ऊपर जो है प्रेशर आने लगा कि सिस्टम तो कोलैप्स कर गया है, तो सिस्टम तो गया, तो आप इसको जो है वो डिवैल्यू करिए, मिसअलाइनमेंट हो गया। तो जब उस पर असर पड़ा, और आप अभी अभी देखे हैं हमारे साथ, अभी ये देखिए पुराने वाले स्लाइड में, पुराने वाले उसमें अभी देखे आप कि हमने जो है अपना रुपया जो पाउंड के अगेंस्ट किया हुआ था। तो जब पाउंड का जो है वो, पाउंड पर जो है प्रेशर आया, पाउंड को जो है जब टेम्पर किया गया, तो उसका सीधा सीधा हमारे ऊपर भी मिसअलाइनमेंट हुआ, रुपया भी उसी हिसाब से मिसअलाइन हो गया। ठीक है, वो भी अपनी जगह से जो है वो विस्थापित हो गया। इसीलिए इंडिया ने फिर क्या किया कि ये एक दो करेंसी से करके हम रखेंगे तो दैट विल नॉट बी हेल्दी फॉर अस, दैट्स नॉट गुड। सो व्हाट वी शुड डू, हमको अपनी करेंसी जो है वो हिस्टोरिकल तरीके से गोल्ड या डॉलर या ऐसा करने की बजाय, हमको करेंसी को उन देशों की करेंसी के साथ मिलाकर रखना चाहिए जो कि, जिनसे कि हमें सबसे ज्यादा ट्रेड करना है। अब बताइए ये सेंसिबल बात है कि नहीं, आप खुद सोचिए कि जो हमारे मेजर बिजनेस पार्टनर हैं, जिनके जिनके बदले में, जिनसे सामान लेके पैसा देना है, जो है डॉलर देना है या जो भी करेंसी में देना है, जिनसे सर्वाधिक आदान प्रदान है, जिनसे सर्वाधिक आयात निर्यात है हमारा, उनकी सारी की करेंसीज को लेकर एक बास्केट बना लेते हैं, और उस बास्केट को पकड़कर अपने रुपए को उसके अगेंस्ट जो है निर्धारित कर देते हैं। वो ज्यादा बेटर है हमारे लिए। तो यही जो बास्केट को खूंटी समझ लिया गया और रुपए को वहां बांध दिया गया खूंटी से, इसको पेगिंग कहते हैं। समझ गए बात? क्लियर है? ये वाला क्लियर हो तब आगे बढ़े। ऑल राइट, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि पहले हम जो है डॉलर, पाउंड और गोल्ड यहीं तक सीमित थे। फिर ये हुआ कि नहीं भाई, इतना सारा ट्रेड कर रहे हैं, सब एक एक करेंसी के भरोसे रहेंगे तो उस पर कोई प्रभाव पड़ता है तो बहुत ज्यादा जो है दुष्प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा। तो एक बास्केट बनाते हैं, डाइवर्सिफाइड बास्केट बनाते हैं, जिसमें मेजर पार्टनर्स की करेंसी रहे, और उनके अगेंस्ट हम, क्योंकि पैसा तो उन्हें देना है ना अंत में, अल्टीमेटली मैटर की ये पूरी एक्सरसाइज का पर्पस यही तो है ना कि उन्हीं से आदान प्रदान होना है। तो वो काम किया इंडिया ने रुपये को डीलिंक कर दिया पाउंड से, पाउंड से जो है वो उसका गांठ तोड़ दिया। ठीक है, और एक बास्केट जो है मेजर करेंसी ऑफ मेजर पार्टनर्स की बास्केट के साथ हमने उसको जोड़ दिया। ठीक, और साथ ही साथ आरबीआई को थोड़ा सा रोल मिला। सुनिए, ध्यान सुनिएगा, महत्वपूर्ण बात। 1971 के बाद वाले फेज में पहली बार आरबीआई को थोड़ा सा रोल दिया गया कि सुनो, अच्छा ऐसा करो, ज्यादा तो नहीं,
लेकिन प्लस माइनस देखो इधर प्लस माइनस 5%। ठीक, ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है प्लस माइनस 5% का ये जो विंडो है, इसमें आरबीआई थोड़ा सा चेंज कर सकती है। कौन ये प्लस माइनस 5% किसका? यही जो अभी बास्केट बनाया ना, मानो, अच्छा उदाहरण ले लो, मानो कि इस बास्केट के अगेंस्ट रुपए की कीमत 100 रुपए निर्धारित हुई। ठीक, तो आरबीआई को इतना अख्तियार दिया गया, इतना रोल दिया गया कि आप 95 से लेके 105 के बीच में ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक, बाकी लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, क्योंकि हमने एक बार फिक्स कर दिया तो कर दिया। तो ये प्लस माइनस 5% का जो चेंज है वो आरबीआई को करने का की इजाजत दी गई। बात समझ गए? धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे चीजें जो है वो मैनिपुलेशन की तरफ जा रही है, धीरे धीरे ओपन एंडेड हो रही है, धीरे धीरे ओपन एंडेड होती जा रही है। ठीक है, पहले एकदम फिक्स था, गोल्ड से, पाउंड से, फिर इतने सारे करेंसी से आए, फिर आरबीआई को थोड़ा सा रोल दे रहे हैं। ठीक है, अब इस बीच में क्या किया लोग, बदमाशी किया, बदमाशी नहीं, अपने अपने के लिए तो ठीक ही किया। वो चाइना, इंडोनेशिया, ऐसी कई ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने माहौल को समझते हुए अपने रुपए को जो है वो डिवैल्यू कर दिया, जबकि वो इन्फ्लेशन से उतना परेशान नहीं थे जितना इंडिया परेशान था। इंडिया को तो सबसे पहले बनता था डिवैल्यू करने के लिए, लेकिन इस बीच में चाइना, इंडोनेशिया वगैरह मिलके वो अपने अपन मिलके क्या अपनी अपनी करेंसी को उन्होंने डिवैल्यू कर लिया, तो एक और जो है चैलेंज बन गया। तो बहुत सारी चीजें इकट्ठा होते 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 तब 1991 आया है, जाने रहिएगा इस चीज को। 19 ये सारी जो दिक्कत है 1973 में याद है, एक उदाहरण दिए थे, याद है तुमको? ओपेक वाला उदाहरण याद है कि कैसे गुटबाजी कर लिया था सब है? तो शुरू में ही देखो, इस फेज के शुरू में ही ओपेक वाला लोग गुटबाजी कर लिया, पहला ऑयल शॉक लग गया। उसके बाद ये लोग जो है चाइना, इंडोनेशिया मिलकर अपने अपने करेंसी को डिवैल्यू कर लिया, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को उनके बेनिफिट वो करेगा कि नहीं करेगा? उनको फायदा करेगा, तभी तो डिवैल्यू किया है। तो वो लोग अपना निकालेंगे, जबकि इंडिया को पहले करना चाहिए था। इंडिया ने किया 66 में, थोड़ा बहुत किया, ठीक है, लेकिन अभी फिर से समय आ गया, ये लोग इतना जल्दी से कर गए कि हमारे बराबर इन्फ्लेशन भी नहीं था उनका, तब भी वो आगे बढ़ के जो है वो इस तरह का चालाकी कर गए। ठीक है, जब ये सब घटनाएं हो रही थी, और फिर 1985 आया। 1985 में ट्रेड पॉलिसी में जो है वो बहुत मेजर चेंज आया। लोग 1991 हमेशा बोलता है, हमेशा हम वही रिफॉर्म पीरियड। मैं आपको सच बताऊं, अगर आप डीप स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली जो रिफॉर्म्स शुरू हो गए थे वो 1980s में ही, 1980s में ही शुरू हो गए थे। 1985 ऑनवर्ड जितनी भी पॉलिसीज ये सब आई सब लिबरलाइजेशन की ही तरफ जा रही थी। 1991 में उन्होंने फिर एक्सपेंड किया गया, हमने पढ़ा भी था, याद होगा आपको, कि जो स्मॉल स्केल रिफॉर्म्स है उन्हें लार्ज स्केल पे लागू कर दिया गया था 1991। तो 1991 आया भाई, फिर ये सब होते हुए करते करते 1991 पे पहुंचे हम। और एक चीज तो रह ही गया, जिससे सेकेंड ऑयल शॉक आया। सेकेंड ऑयल शॉक किससे आया? लिखो कोई चैट बॉक्स में। पहला ऑयल शॉक ओपेक वाला था, सेकेंड ऑयल शॉक क्यों आया था? गूगल करोगे तो नहीं मिलेगा, जानते हो तो जानते हो, नहीं तो हो सकता है मिल भी जाए। खाड़ी युद्ध सुने हो? हाँ देव, बिल्कुल ठीक, अभिनव बहुत अच्छे, शाबाश। ठीक है, गल्फ वॉर, ठीक है, तो गल्फ वॉर हो गया, उससे भी आ गया सेकेंड ऑयल शॉक। कुल मिलाकर ऐसी परिस्थितियां बनती गई कि फिर से 1991 आते आते जो है वो रुपी के वैल्यू को एडजस्ट करने की नौबत आ गई, परिस्थितियां आ गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है, 1991 वाला जो काम हम कर रहे हैं उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि पहला जो डिवैल्यूएशन हमको 1966 में करना पड़ा था वो मजबूरी में था, विवशता में था। लेकिन मैं सच पूछिए मुझसे तो 1991 में जो डिवैल्यूएशन किया गया वो सिर्फ विवशता की बात नहीं थी। उस समय तक हम संकल्प ले चुके थे कि अब रिफॉर्म्स कर देने हैं। हम वी हैव ऑलरेडी मिस्ड द बस, वी आर लेट, सो नाउ इज द टाइम टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग। ओके, तो ये जो है मजबूरी के सिर्फ वजह से नहीं था, ये कहीं ना कहीं अपना सिर्फ वॉलंटरी कमिटमेंट भी था। तो क्या हुआ, 2 स्टेप जो एडजस्टमेंट किया गया, ठीक है, 18% जैसा, अगर मुझे ध्यान से याद है तो इस बार 18 to 19% जैसा डिवैल्यूएशन 2 स्टेप में किया गया, थोड़ा थोड़ा करके किया इन्होंने। ठीक है, यहां से आगे जितनी भी प्रोसेस है वो बहुत फेजेस में होंगी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इतनी बड़ी इकोनॉमी थी और उसे फिर एकदम से ओपन कर देना, क्लोज्ड से ओपन कर देना, वो फेजेस में ही पॉसिबल था। ट्रांजिशन एकदम से करते तो बहुत तकलीफ हो जाती।
रुपये की पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी जो है वो रुपये की, इसका अर्थ क्या हुआ, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी क्या क्या हुआ, उसको कहते हैं डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम नोन एज LERMS। मैं बताऊंगा आपको, इसका डिटेल में बताऊंगा। 40-60 के फंडे को समझ लीजिए और बहुत आसान शब्दों में आपको समझा देता हूं। 1991 में जब रुपये के वैल्यू के एडजस्टमेंट करने की बात आई तो पहले तो उसे 2 स्टेप में डिवैल्यू किया गया, नंबर 1। नंबर 2 सिर्फ डिवैल्यूएशन नहीं, उसका आपस में जो, अब हम ओपन होने जा रहे हैं ना भाई, आप समझ रहे हैं मेरी बात, अब मार्केट ओपन करने जा रहे हैं, इकोनॉमी ओपन करने जा रहे हैं, तो करेंसी भी आपस में जो है फ्रीली एक्सचेंज होगी, तो उसके लिए तैयार होना पड़ेगा ना। तो तैयार होने की जो ट्रांजिशन फेज है वही हम पढ़ रहे हैं इस समय। 1991 से 1993 के बीच का जो समय है वही ट्रांजिशन फेज था करेंसी के लिए। तो उसमें क्या किया गया, उसमें यह किया गया कि अभी पूरा 100% नहीं करेंगे, 40% वही होगा जो हम फिक्स करेंगे। यानी आप ऐसे समझो इस चीज को कि 100 रुपए की अगर बात हो रही है तो 40 रुपए उसमें से उसका जो रेट है वो किस हिसाब से भुनाया जाएगा, मुझे भुनाया जाएगा शब्द यूज करना पड़ रहा है, आपको फॉरेक्स है अगर आपके पास, उसका कैसे भुनाया जाएगा, 40% आपको वो रेट मिलेगा, आपके जितना भी लाए हैं उसका 40% आपको गवर्नमेंट वाला रेट मिलेगा जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है, और 60% का रेट मिल जाएगा आपको मार्केट वाला। ठीक, 100 यूनिट आपके पास है, उसमें से 40 यूनिट इस रेट पे भुना लीजिए और 60 यूनिट मार्केट रेट पे भुना लीजिए। डू यू गेट इट? तो हाइब्रिड सिस्टम आया। ठीक, पहले एकदम पूरा ही तरह फिक्स्ड थे, याद है आपको, पहले पूरी ही तरह फिक्स्ड थे, फिर ये हाइब्रिड सिस्टम आ गया, डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम आ गया, और फिर एकदम से 1993 के बाद पूरी तरह से चीज को, जब हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो पूरी तरह से 1993 के बाद ऑनवर्ड्स सारा का सारा चीज मार्केट डिटरमिन कर दिया गया, पूरी तरह से 100 का 100 जो है वो मार्केट के हवाले है। और जो इसी प्रोसेस को मैनेज्ड फ्लोट कहा गया कि इसको 99% समझो फ्लोट ही है पूरी तरह से, डे टू डे मूवमेंट्स में हमारा कोई दखल नहीं रहेगा, वो करेंसीज आपस में अपने हिसाब से एडजस्ट होंगी, आवश्यकता पड़ने पर ही, जब कभी ऐसी कोई सिचुएशन, क्राइसिस सिचुएशन आएगी तभी हम इसमें इंटरवीन करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। अब प्रश्न आता है कि वो कौन सी परिस्थितियां थी, एक बात ये भी जान लीजिए, फिर आज का क्लास खत्म करेंगे, और चूंकि आज देर से शुरू ही किया है तो जो है वो क्या परिस्थितियां थी आगे जिसकी वजह से 2 बार भारत को करेंसी का मेजर डिवैल्यूएशन करना पड़ा। 1966 की यदि स्थिति आप देखिए तो आप इमेजिन करिए, आप विजुअलाइज कर लीजिए, करिए उस समय के भारत को, कि भारत जो है वो स्पीड से अपना जो है ग्रोथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। भारत ने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पर जाते हुए थोड़ा बहुत जो है वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की तरफ जाने का फैसला किया। प्लानिंग पीरियड का आपने हम सब जान चुके हैं, तो क्रक्स तो सारा अब आप समझ ही चुके हैं कि अब जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का रास्ता चुना भारत ने, जहां से भी इंफ्लुएंस होकर चुना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का रास्ता चुना। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के रास्ते जाना है तो कैपिटल आपको फॉर्मेशन करना पड़ेगा, कैपिटल क्रिएट करनी पड़ेगी, इंडस्ट्री सेट करनी पड़ेगी। और ऐसे में क्या होगा, देखिए क्या होगा ऐसे में, अभी अभी जो हमने डिस्कस किया था, इंपोर्ट्स हमेशा एक्सपोर्ट से ज्यादा रहेंगे इनिशियल फेज में, और इंपोर्ट्स अगर इनिशियल फेज में ज्यादा रहेंगे तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अब याद करिए उस तराजू को, कि एक्सपोर्ट जितना डॉलर कमा नहीं पा रहे हैं उससे कितना ज्यादा इंपोर्ट का बिल देने में चला जा रहा है, यही बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डेफिसिट है वो होगा, और अगर ऐसा हुआ तो जितना भी फॉरेक्स है सब डिप्लीट हो जाएगा, सब खर्च हो जाएगा, सब चला जाएगा, सारा का फॉरेक्स जो है वो इंपोर्ट में चला जाएगा, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट अभी हम उस स्थिति में ही नहीं पहुंचे, मेच्योरिटी में नहीं पहुंचे कि हमारी इंडस्ट्रीज ऐसा परफॉर्म करें कि एक्सपोर्ट से पैसा कमाए, तो हम उस स्थिति में ही नहीं। ठीक है, उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है, अब आपका एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है, देखिए मजा कैसे कैसे चीजें काम करती हैं, आपका एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है, अभी अभी हमने पढ़ा कि यदि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का रेजिम होगा तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप वो मार्केट से एडजस्ट नहीं होगा, आपको बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे, बहुत सारे इंटरवेंशन करने पड़ेंगे, तो इन्फ्लेशन हाई रहेगा, उसको आप करेंसी बेस्ड स्ट्रेटेजी से उसको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि करेंसी तो फिक्स्ड है। समझ गए बात? मॉनेटरी पॉलिसी बताया ना, मॉनेटरी पॉलिसी कहाँ काम कर पाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, यही तो हमने सीखा था अगर आपको ध्यान हो तो उस समय कंट्री में एक्सचेंज रेट फिक्स थी, तो इन्फ्लेशन जो है वो अपने हाई पर थी। इंपोर्ट्स, तो इन्फ्लेशन हाई होगा तो क्या होगा बताइए, इन्फ्लेशन हाई होगा तो क्या होगा, इंपोर्ट्स जो है महंगे होते जाएंगे, एक्सपोर्ट्स हो ही नहीं पा रहा है, इंपोर्ट जो है के लिए जो है पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है। उसी समय और 3-4 घटनाएं होगी। पहली घटना क्या हुई, देव कुछ पूछना चाह रहे हो या गलती से हुआ तो बताना, रुक जाओ।
हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हो पूछ लो। सर, सर पूछना नहीं चाह रहे हैं। हाँ सर आपने पूछा इन्फ्लेशन हाई होगा तो क्या होगा ना। अच्छा, ऑलराइट, वो अच्छा मैं बता देता हूँ। कोड कोड हमारा ये रहेगा कि अगर कुछ पूछना है तभी हैंड रेज करिए, बाकी वाई वाई लिख दीजिए चैट बॉक्स में तो मैं समझ। ठीक। दूसरी जो घटना हुई, ये सब तो आपस में इंटरकनेक्टेड है कि इंपोर्ट ज्यादा है तो फॉरेक्स चला गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इंपोर्ट बढ़ता गया, एक्सपोर्ट है ही नहीं हमारे पास, कम होता जा रहा है। दिक्कत, अगली दिक्कत क्या हुई कि उस समय तक आपको मालूम होना चाहिए, भारत पाकिस्तान लड़ाई आपको ध्यान होगी, अमेरिका से जो हमारे सब वो सब फ्रेंडली कंट्री हुआ करते थे ना, पाकिस्तान फ्रेंडली कंट्री, यूएस वगैरह। तो उसमें क्या दिक्कत हुआ कि जो एटीट्यूड था फॉरेन, जो एटीट्यूड था, जो जो बोरोइंग मार्केट है, उसका जो एटीट्यूड था भारत के प्रति, वो जो है वो थोड़ा उतना फ्रेंडली नहीं रह गया था। तो जो शुरू शुरू में जब कोई देश आजाद हुआ है तो वैसे भी लोग पैसा दे रहे हैं कि चलो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। धीरे धीरे करके जब 10-15 साल बीता, 20 साल बीतने की नौबत आई, तो धीरे धीरे फॉरेन एड जो था, एड सहायता की बात कर रहा हूँ, सहायता कट ऑफ हो गई। 1965 आते आते सहायता पूरी तरह से कट ऑफ हो गई, और जो है जो पैसा इस्तेमाल हो जाया करता था वो रास्ता बंद हो गया। ठीक। फिर भारत पाकिस्तान का वॉर हो गया, उसमें तो जो हुआ वो हुआ, यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट से जो संबंध बिगड़े वो बिगड़े। उसके बाद थोड़ा बहुत ठीक है वॉर, उसमें डिबेट है, मैंने पढ़ा शुभम, वो भी मैंने पढ़ा, उसमें डिबेट है कि कोल्ड वॉर की वजह से भी इंडिया को क्या इफेक्ट पड़ा। तो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट बोला कि कहे कोल्ड वॉर में इंडिया ही था क्या, बहुत सारा देश था, तो जितना बाकी को इफेक्ट पड़ा होगा उतना इंडिया को पड़ना चाहिए, तो इससे ज्यादा क्यों पड़ेगा, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन ये बात सही है कि इन ये सभी कारक मिले जुले रूप से हैं, ऐसा एक ही कोई जिम्मेदार नहीं। फिर और क्या हो गया, डिफेंस स्पेंडिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई इंडिया की। मैं आपको बताऊं, अगर मुझे डेटा ठीक से ध्यान है, क्योंकि मुझे रहता नहीं है, तो लगभग 1/4 मेरे दोस्त, 1/4 टोटल खर्चे का 1/4 उस दौरान जो है वो डिफेंस की तरफ, 24-25% जैसा डिफेंस की तरफ चला जाया करता था पैसा। इन सभी कारणों से, और फिर उसी में सूखा भी पड़ गया, एक एक भयानक ड्रॉट भी पड़ा। इन सभी कारणों से हमारी स्थिति बहुत बुरी तरह से खराब हो गई, और क्राइसिस को टालने और मैनेज करने के लिए रुपए को उस समय डिवैल्यू करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया हमारे पास, क्योंकि एक्सपोर्ट तो हो नहीं रहा था कि उससे करेंसी आ जाए और हमसे फाइनेंस कर सके। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक बात है। अब 1991 में क्या हुआ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1991 में, ये बात सही है कि उस समय भी विवशताएं थी, लेकिन विवशताओं के साथ साथ उस समय तक एक जो है जिसे कहते हैं विचारधारा सुदृढ़ हो चुकी थी कि अब समय आ गया है, अब हमें जो है ये जान बचाने के लिए नहीं करना है, सिर्फ जान बचाने के लिए डिवैल्यू नहीं करना, रिफॉर्म नहीं करना है, आगे जो है अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए भी करना है। वो विचारधारा उस समय तक सुदृढ़ हो चुकी थी। तो एक्सपोर्ट पॉलिसी मैंने आपको बताया 1985 में आई, बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो लिफ्ट कर दिए गए, करंट अकाउंट डेफिसिट होगा ही, आप एकदम से ओपन कर देंगे इकोनॉमी को तो आपका मार्केट भर देगा सब इंपोर्ट से, यहाँ पर से कंजम्पशन करने वाला सब भर जाएगा, और उतना एक्सपोर्ट आपके पास है नहीं, तो करंट अकाउंट का जो है डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा। डिवैल्यूएशन से क्या होता है, अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं रमाकांत, ठीक है, आप वापस चलो बता दें, आपको ध्यान करिए वापस वही शराब वाला एग्जाम्पल देखिए ना, शराब वाला एग्जाम्पल देखिए कि अगर इसको कैसे मैं आपको उस एग्जाम्पल से बता सकता हूं, और वैसे भी समझा सकता हूं, आप ध्यान से समझे कि रुपए की वैल्यू, रुपए की अगर वैल्यू कम कर दी जाए, रुपए की वैल्यू अगर कम कर दी जाए, ठीक है, तो आप ये सोचिए कि रुपए का वैल्यू अगर कम होगा तो हमारा जो माल है बाहर, ऐसा समझिए उदाहरण से, हमारा भेजा हुआ एक्सपोर्ट करने वाला जो माल है वो जो है वो डॉलर, उनके पास डॉलर है, और हम रुपया जो है रुपए में उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, रुपए के वैल्यू लगाए हुए हैं, रुपया कमजोर पड़ रहा है, तो डॉलर जब वो हमको रुपया पे करना चाहेंगे तो उनको कम डॉलर में बहुत सारा रुपया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। थिंक अबाउट इट, कि सामने वाले को अगर वो इंडिया का माल खरीदना, हाँ कम डॉलर लगेगा, उनका कम डॉलर लगेगा, तो उनके लिए चीजें सस्ता पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी, तो हमारा एक्सपोर्ट को जो है एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हमारी चीजें जो है वो ज्यादा कंज्यूम होंगी कि नहीं बाहर, उसके ज्यादा ग्राहक मिलेंगे, उसको ज्यादा खरीदा जाएगा कि नहीं खरीदा जाएगा। तो अब और तो कुछ कर देखो, सारा दिक्कत हुआ इसलिए है दोस्त, मैं बताऊं आपको, सारी प्रॉब्लम इसलिए हुई है, एक आइडियोलॉजिकल जो है वो
जिसे कहते हैं स्लैक, एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम रही है हमेशा से। वो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम ये रही उस समय कि इनिशियल फेजेस में बहुत सारी अलग अलग विचारधाराओं के कारण, उनके प्रभाव के कारण, हम लोग जो पहला फेज हमारा था इंडिपेंडेंस के बाद 10-15 साल 20 साल तक, उस फेज, इनफैक्ट कुछ लोग तो कहते हैं कि 90 तक भी नहीं सुधरे थे हम, 1990-91 तक भी। लेकिन चलिए 20 साल कह लीजिए, पहले जो 20 साल थे, 20-25 साल, उस फेज को एक्सपोर्ट पेसिमिज्म का फेज कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे रे, निर्यात निराशावाद, कि नहीं कुछ नहीं रखा है, अरे कोई फायदा नहीं है एक्सपोर्ट करने में, हम काम मुकाबला कर पाएंगे, वो सब बहुत बदमाश लोग हैं, वो वैसे भी नहीं हमको ग्रो करने देंगे, इस तरह की चीजें, कि कोई फायदा नहीं, एक्सपोर्ट नहीं होगा उससे, वो हमारी कमाई का साधन कभी नहीं बन सकता, अल्टीमेटली हमें यही करना पड़ेगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। याद रखिएगा, 2 अंग होते हैं। अगर आप माइक्रो इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हैं तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिएगा। नंबर 1 इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, नंबर 2 एक्सपोर्ट प्रमोशन, नंबर 3 करेंसी फ्लक्चुएशन। ये 3 चीज अगर आप समझते हैं तो इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है उसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो भाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरह हम लोग है कि नहीं, हम खुद बनाएंगे ताकि हमें बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े। ध्यान से समझिए, भारत के समक्ष जो है चुनौती क्या है, उस समय के भारत के समक्ष चुनौती क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट की चुनौती है कहीं, हाँ सही बात है कि भाई हमारे पास डॉलर ही नहीं है तो हम कैसे फाइनेंस करेंगे, इतना सारा इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमने क्या सोचा, हमारे पास कितने रास्ते थे? 2 रास्ते थे। वो 2 रास्ते कौन से हैं? या तो एक्सपोर्ट इतना हम बढ़ा दें कि उससे डॉलर आ जाए जो हमारे इंपोर्ट का खर्चा उठा सके, नंबर 1। नंबर 2, इंपोर्ट ही कम कर दो, इतना बंधन लगा दो कि इंपोर्ट ही ना करे कोई। समझ गए बात? ये 2 रास्ते थे। जो भी उस समय की जो भी बुद्धिमत्ता रही, आज इस तरह से जो है बैठ के जूम सेशन पे जो है उनकी आलोचना करना आसान है। उस समय उन्होंने जो भी निर्णय लिया होगा सोच समझ के, वॉट एवर इट इज, हम जबरदस्ती की आलोचना नहीं करनी, मेरा तो वो स्तर कम से कम नहीं है। लेकिन उस समय ज्यादा फोकस दिया गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर, सोवरेंटी इशू, बहुत सारा चीज था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर फोकस दिया गया कि नहीं कुछ ऐसा कर दो कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा ना हो, लोग जो भर न दे हमारे मार्केट को, एकदम बर्बाद न करते हैं। समझ गए बात? तो क्या एग्जांपल है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का? एग्जांपल बताइए। ये इंपोर्ट नहीं कर सकते, इसके लिए परमिशन चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट फॉरेन से नहीं हम लाने देंगे, ये नहीं आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते, केस टू केस बेसिस पे आप पहले अप्रूवल लीजिए, ये कस्टम्स, ये फलाना। समझ गए बात? ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के इफेक्ट्स हैं सारे। इस नजरिए से आप पढ़िए। अल्टीमेटली उद्देश्य तो बताओ कि ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, लाइसेंस राज बोलते थे, ये बोलते थे, ये सब क्यों था? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के फेवर वाली चीजें हैं। उतना ही ध्यान, लोगों का कहना है कि यदि उतना ही ध्यान एक्सपोर्ट प्रमोशन पर दिया होता उस समय, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन पे अगर कहीं दिया होता तो शायद हम बेटर ऑफ होते। थोड़ा लेट हो गए, कुल मिलाकर बात ये है। ठीक है, इतनी सी बात कही जाती है। और तीसरी चीज है कि अगर आप करेंसी का आपस में फ्लक्चुएशन और ये सब समझते हैं तो आप बहुत अच्छे से असेस कर सकते हैं कि इस घटना का ये इम्पैक्ट होगा। वैसे सवाल हालांकि आते नहीं है तो इसमें चिंता न करिए, उसकी जरूरत नहीं है। कहने का मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट, समझ गए ना आप बात? तो 1991 आते आते फिर से 1985 में जब आपने ओपन अप किया तो फटाफट जो है वो जब खोलेंगे इकोनॉमी तो वही होगा, धर सब जो है वो इंपोर्ट बिल बढ़ता जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को आप जो है बीट करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व चाहिए, उसके लिए लोन लिया आपने, मान लीजिए लोन आपने लिया तो शॉर्ट टर्म मान लीजिए लोन लिया, जिसको जल्दी जल्दी लोग पैसा मांगने लगे। तो ऐसी सिचुएशन आ गई कि जो है महीना भर, कुछ ऐसा ही था ना कि महीना भर, कितने महीना या 2-3 महीने भर का भी फॉरेक्स नहीं रह गया था हमारे पास, कि 2-3 महीने भर के भी इंपोर्ट का बिल चुका सके अगले 3 महीने का, उतना भी फॉरेक्स नहीं रह गया। सोचिए, ये फॉरेक्स की क्राइसिस हो गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई कि नहीं हो गई? तो फिर जब ये स्थिति आ गई तो लोग पैसा देना भी बंद कर दिया, शॉर्ट टर्म की तरफ हम जाने लगे। शॉर्ट टर्म तो जो है फटाफट पैसा सब वापस मांग लिया आपने। अगर 40 साल 20 साल जो है उसका रहे पीरियड तो ठीक है, 5-5 साल में सब पैसा अपने मांगे लगे, वो अलग सिचुएशन आ गई। वही बात फिर आगे अंततः क्या हो गया कि जो लोन लिए थे उस लोन पर जो इंटरेस्ट बन रहा था वो इंटरेस्ट देना भी उसके भारी पड़ रहा था। लोन वापस करने की तो बात ही छोड़ दी, लोगों को कॉन्फिडेंस हिल गया कंट्री से, पैसा आना जो है वो बंद हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। तो इन सब वजहों से फिर इस प्रकार की प्रॉब्लम आई, इन्फ्लेशन अपने हाई पे पहुंच गया। इन्फ्लेशन, डेट और ऑयल, कोई भी पूछे तो फट से 3 चीज बोल दीजिएगा कि जो सिम्टम्स, मेन सिम्टम्स जो उस समय के थे वो था इन्फ्लेशन, डेट और ऑयल शॉक। ये 3 शॉक थे जिन्होंने उस समय ये कंपेल किया। मेनली यही थे, इमीडिएट रीजन ये थे। लॉन्ग टर्म तो चल ही रहा था। 1973 में ओपेक हुआ, फिर 85 में एक्सपोर्ट पॉलिसी आई, होते होते तो समय से चल ही रहा था।
ठीक है, इसीलिए कहता हूं मैं कि एक्सटर्नल प्रेशर था ठीक है, लेकिन सेल्फ कमिटमेंट भी था इंडिया का कि अब हम इसे सुधारना चाहते हैं, इसे ठीक करने का समय आ गया है। 9:15 हो गया है, बस ज्यादा नहीं मैं खींचना चाहता आज के इस लेक्चर में। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और डिवैल्यूएशन भी अब आप समझ गए अच्छे से कि डिवैल्यूएशन क्यों हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था। वैसे तो ये आपका होमवर्क होना था, लेकिन चलिए अच्छी बात है, हम लोग डिस्कस कर लिया, हम समझ गए बढ़िया से। अब जो है थोड़ा थोड़ा आप लोग साथ साथ सवाल वाल भी देखा करिए, है ना, ऐसा नहीं लगे कि पूरा थ्योरी ही पढ़ाए जा रहे हैं और कुछ आ नहीं रहा है। सवाल वाल भी देख कर अकेले, ठीक है मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी जो है वो नहीं समय मिल पाता है, तो आप भी थोड़ा जिम्मेदारी लेकर करते रहिए, अपने क्वेश्चंस देखते रहिए और जो है न्यूज़पेपर आइटम्स देखते रहिए कि आपने जो पढ़ा है, हम जो पढ़ रहे हैं पिछले महीने भर से, वो न्यूज में आपको पढ़ने में कैसे सहायता कर रहे हैं, ये सब आप सेल्फ अपना विजिलेंस बनाए रखिए, है ना। तो अभी आगे की क्लास आदरणीय सर लेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, अगले क्लास में मिलेंगे।